Namaste and good day, dosto. Welcome back to our podcast, Indian Born Aussie Bred, where I'm sharing my journey of falling pregnant through the various ups and downs in life in our season 1. आज के एपिसोड में we will discover about the next 2 months of mental and physical transformation that I went through to uplift myself after finding out about our blighted ovum. अभी तक का सफ़र अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा रिकैप के लिए आपको बता दें कि अभी तक हमने क्या बात किया है. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफ़िकल्टीज इन फॉलिंग प्रेग्नेंट, trying for IVF, losing all our eggs due to zero fertilization on the first round of IVF, which is a very rare phenomenon, trying for a new method called ICSI and falling pregnant, including the secret pineapple episode, and finally realizing it was a chemical or a fake pregnancy due to a phenomenon called blighted ovum. Let's begin. A lot of the podcast is going to be about my parenting journey. Welcome to Indian Born Aussie Bred. तो इतना सब कुछ के बाद I was lower than low. But somehow, also at such a point in my life, कि I was almost giving up, but also emerging like a phoenix from the ashes. कभी कभी लाइफ में हम इतने ज़्यादा चैलेंज हो जाते हैं कि लगता है कि अपने हाथ में अब कुछ भी नहीं है. कुछ वैसा ही उस वक्त लग रहा था. So I decided that after 3 weeks of DNC, once I have recovered, that I will build on my body and my mind by joining a gym and changing my diet. और मैंने वही किया. I signed up to our local gym and started with group classes क्योंकि I needed motivation to keep going. और दूसरों को देखने से I think my possibility of giving up would be lower. I created a schedule and went to group classes for intensive exercises every day. तो ये बहुत बड़ा habitual change था because both hubby and I at that point did not ever have a routine of exercising daily. तो ये commitment बहुत नया और बहुत बड़ा था. पर मेरे बॉडी और माइंड में इतना फ्रस्ट्रेशन, क्वेश्चन और एंग्विश था that I really wanted to sweat it out. So I thought this is going to be good to just let out all the energy in a positive way. तो एक क्लास था in my new gym which was run by a lady named Zarina, and the class she ran was called Body Combat. तो ये फर्स्ट टाइम था that I did it, and I came out like a fighter. It has kicking, boxing, jumping in a sort of a dance form. अगर आपने कभी 90s में वो डांस फाइटिंग गेम्स खेले हैं which incorporates the Brazilian capoeira dance, you would know what style of combat I'm talking about. The moves are so smooth and hard at the same time. ये क्लास मेरी फेवरेट थी एंड इट हेल्प्ड कि जो इंस्ट्रक्टर थी जो इसको लीड कर रही थी उसके खुद के 5 बच्चे थे. तो वो खुद भी यही बोलती थी कि 5 बच्चों को संभालने के लिए ये क्लास बहुत अच्छा है क्योंकि आपका पूरा नेगेटिव एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है. एंड शी वॉज सो ट्रू. आफ्टर दोज 45 minutes, the entire class was shouting in unison. क्योंकि तब तक सबकी जान निकल चुकी होती थी पर हार किसी को नहीं मानना था. I never sweated so much as well as felt so relieved as I did after every class of hers. Other than the body fitness,
I also wanted to work on my diet. So the other change I made was to add more iron to my diet. क्योंकि अभी तक ये भी समझ गए थे कि एक तो हम एनीमिक थे और दूसरा कि ये बच्चा पैदा करने में खून का खेल बहुत है, लिटरली खून पसीने की मेहनत. So with the new diet, I incorporated easier ways to increase iron by adding red meat and chicken liver for quick boosts. उसके साथ I also reduced carbs and went with salads and vegetables during lunches या फिर less rice and continued with roti but tried different types of grains or high protein or low GI rotis during this phase. So I also made a very conscious effort to add fruits to my diet. हम सोचे आदतें अभी से बदलेंगे तो प्रेग्नेंट जब होंगे तब कंटिन्यू करना आसान होगा. I didn't want to keep taking unnecessary medications या supplements, तो डाइट से आयरन सप्लीमेंट्स रिड्यूस करने का एम यही था. नाउ आई मस्ट स्टेट कि ये सब मैंने अपने समझ से किया, ना कि कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करके. याद है ना, हम लोग 3 साल से स्पेशलिस्ट के बाद स्पेशलिस्ट देख रहे थे, तो अब और स्पेशलिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट देखने का मन बिल्कुल नहीं था. आई जस्ट डिड वॉट फेल्ट राइट. और खाना चेंज करना और वर्कआउट करना दोनों मेरे अंदर का एक जुनून बन गया था टू फाइट दिस फाइट. इस फेज़ में काफ़ी टाइम हम पूरा जर्नी सोच के दुखी भी होते थे, पर फिर ये भी सोचते थे कि अपने हाथ में ये सब पूरी तरह से नहीं है. जब साइंस भी अभी तक ये सॉल्व नहीं कर पाया तो हम दुखी होके क्या करेंगे. शायद बॉडी और माइंड को फिट रखने से जब टाइम आएगा तो बेबी के लिए उसका पहला घर यानी अपना शरीर बिल्कुल रेडी होगा, विद द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहेगा टू कैरी द हेवी प्रेगनेंसी वेट while doing life over the next year. बस यही एक सोच से हम ये रूटीन रेगुलरली करने लगे. डॉक्टर्स यूजली डीएनसी के बाद 3 महीने का गैप देने बोलते हैं एज अ मिनिमम. कुछ कपल्स अप टू 6 मंथ्स का गैप भी देते हैं, पर मेरे लिए ये एक फेलियर जैसे हो रहा था. आई वॉज रनिंग ऑन माई ओन टाइम लाइन ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट बिफोर द नेक्स्ट ईयर स्टार्टेड और डीएनसी जुलाई में ही हुआ था. हम सोचे एक साइकिल देते हैं इन अगस्त टू गेट द बॉडी बैक टू नॉर्मल और फिर डॉक्टर को पूछेंगे कि सितंबर साइकिल में ट्राई कर सकते हैं क्या. आई मस्ट से वो 1 महीना with the change of diet and adding 1 hour of regular exercise, especially by joining the gym, which forced me to get out of the house and see people and see the sunlight, really helped my mental state. ये काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपको कोई बोले कि ये करो या वो करो पर आपका मन नहीं कर रहा, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है. कभी कभार ज़िंदगी में खुद को ही प्रोत्साहन देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, खासकर अगर आप भारत से हैं और बाहर रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बचपन के दोस्त या फैमिली कनेक्शंस नहीं होते हैं जो आपके बदलते रुखों को देखें और समझ पाएँ, और आप और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगते हो. खैर ये सब हुआ अगस्त में, और जब पीरियड्स आए तो हम खुश थे कि बॉडी भी नॉर्मल हो गया था. हालांकि पीरियड्स अब थोड़ा लेट आया था, पर अब से वी कुड ट्रैक कि ये साइकिल नॉर्मल होगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला था. वी मेड आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट टू डिस्कस द गो अहेड फॉर द नेक्स्ट मंथ. वो भी फ़ोन कंसल्ट था तो जल्द ही मिल गया. एंड डॉक्टर बर्माइस्टर सेड कि अगर आपको मेंटली ठीक लग रहा है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. वो 1 महीना हम काफ़ी बदल गए. हालात से हारे हुए मानसिकता से हम अब काफ़ी एनर्जेटिक और कैन विन द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही थी. आई स्टिल न्यू कि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, पर आई रियली डिडंट वांट टू डिले फॉर अनदर ट्राई. आई फेल्ट लाइक जो मेरे हाथ में था मैंने किया, बॉडी और माइंड का अच्छे से ख्याल रखा
और अब जो होगा वो भगवान के हाथ में है। जब हमारी डॉक्टर भी मान गई तो बस हम सितंबर के पीरियड्स का वेट करने लगे while continuing on this new healthy lifestyle journey I was on। जब सितंबर आया, क्योंकि हमारे 3 एम्ब्रियोज अभी भी फ्रोज़न थे, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस सिर्फ ट्रांसफ़र करने का था और काफ़ी इजी था। वी ओनली हैड टू ट्रैक आवर फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड स्टार्ट। ये काफ़ी इजी और पेनलेस प्रोसेस था, तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या था। Up for the exciting part of starting the transfer and the 2 week wait period to see if it stuck or not. Around early to mid September, हमारा transfer हुआ. This time it was a male doctor who did the transfer. And as usual, the embryo was so microscopic कि screen पे कुछ भी नहीं दिखता है, even though we were shown the live transfer as it happened. इस बार डॉक्टर ने स्पेशली कहा कि यूरिनेट करते हुए जाना, होल्ड मत करना। आपको अर्लियर एपिसोड से याद होगा कि सेक्स के बाद या ट्रांसफ़र के बाद हम कहीं ना कहीं इसी सोच में उलझ जाते हैं कि टॉयलेट जाने से स्पर्म या एम्ब्रियो फॉल आउट तो नहीं कर जाएगा। पर बस्टिंग दिस मिथ, इस डॉक्टर ने कहा कि टॉयलेट होके जाना बाहर। सो आई फॉलोड द डॉक्टर्स ऑर्डर्स एंड वेंट अवे विद फिंगर्स क्रॉस्ड। अगले 2 हफ्ते मैंने जिम में इंटेंस एक्सरसाइजेस तो बंद कर दिया, बट आई कंटिन्यूड विद लाइट वॉक्स एंड सिंपल एक्टिविटीज़। डाइट कंटिन्यू रखा और हाँ, पाइनएप्पल फिर खाया। याद है ना? इट्स अनदर मिथ बट इट वर्क लास्ट टाइम, सो वी कंटिन्यूड दिस टाइम टू। और हाँ, इस बार भी soon after the transfer I booked an acupuncture therapy that evening and put my favorite music and relaxed। तो हाँ, ये एक्यूपंक्चर और पाइनएप्पल दोनों ही मिथ्स है जिसके बारे में मैंने एपिसोड 7 में बात किया था। बट इट डज़ नो हार्म इवन इफ इट डजंट गारंटी। पर आप अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन ले हमेशा। अब तो जैसे हम दोनों इस प्रोसेस में प्रो हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2 वीक वेट पीरियड और ये सब प्रोसेस रट्टा मार लिए थे। 2 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट का दिन आ गया था। आई जस्ट विश्ड कि कोई एक्सपीरियंस नर्स मिल जानी चाहिए, वो खड़ूस जैसी नहीं जो लास्ट टाइम मिली थी, सुई चुभा के हर जगह खून फैला रही थी। भगवान की दया से सब अच्छा था। ब्लड टेस्ट बहुत स्मूथ हुआ और अगले दिन हम नर्स से कॉल बैक का वेट कर रहे थे। उस दिन हमारे दिमाग में सारे पहले के कॉल्स, एंटिसिपेशन वाला फीलिंग एक साथ दौड़ रहा था। वो फर्स्ट एवर कॉल जब अपने को पता चला कि 0 फर्टिलाइजेशंस हुआ था, वो फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ वाला कॉल, और अब आज का कॉल। हबी ने बोला, जो भी होगा मूड ख़राब मत करना। हाँ, वो तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आई रियली विश्ड इट वुड बी पॉजिटिव। आखिर इतना मेहनत जो किया था पिछले ही 1 महीने में। अलास, नर्स ने कहा, इट इज़ अ पॉजिटिव रिजल्ट। वो हो, वी वर फाइनली प्रेग्नेंट अगेन। पर ये तो सिर्फ शुरुआत था। The 6 week scan was what we really needed to pass to feel like this is something we could continue to be happy about। आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। आज के एपिसोड से आशा है आपको खुद के दिमाग और शरीर को फिट रखने की अहमियत पता चली होगी। I hope it inspires you to continue fighting on your journey to pregnancy if you're also having troubles along the way। तब तक के लिए नमस्ते and good day from Aussie Masi।